Hello students, today we are going to learn about first chapter in statistics, collection of data. In this chapter we will discuss about some important terminology in statistics. So this is our 2019-20 Shining Stars results, and if you all are working very hard, so you can also achieve such type of result. And here many of students clear their CA foundation, so work very hard. Now the first word, population. In statistics, a group of all the units under study is called population. Example, to study the standard of living of workers of a factory, a group of all the workers of the factory becomes population for this study. So what is population? So whenever we have to collect some information about some person or about any subject, so when we visit personally, directly or indirectly, we can study a group or a person, and that is called population. Means what is population? A group of all the units under study is called population. मतलब आपको जिस सब्जेक्ट का स्टडी करना है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा. जैसे आप स्कूल के अंदर थे 9th या 10th के अंदर, तो जब आपका फर्स्ट लेक्चर होता था तो आपका जो क्लास टीचर वो अटेंडेंस लेता था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास. So at that time, for the class teacher, a student is understudy, it is called population. तो जो टीचर है उसको स्टूडेंट को स्टडी करना है कि भाई कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है. तो उस टाइम जो स्टूडेंट्स है वो अंडर स्टडी है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. मतलब आपको जिसका स्टडी करना है तो वो सब्जेक्ट, अ ग्रुप, दैट इज पॉपुलेशन फॉर यू, वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगी. जैसे आपको मोबाइल परचेस करना है तो आप मोबाइल शॉप पर जाओगे और मोबाइल की स्टडी करोगे तो उस टाइम मोबाइल आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा. आपको स्टेशनरी परचेस करनी तो आप स्टेशनरी शॉप पर जाओगे तो स्टेशनरी की आप स्टडी करोगे तो स्टेशनरी आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू स्टडी about the standard of living of workers in a factory, so at that time a group of all the workers becomes population for the study. अगर कोई फैक्ट्री है उसके जो वर्कर्स है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो आपको जानना है, तो जो वर्कर्स है वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाए क्योंकि आपको उसकी स्टडी करनी है. So population, a group of all the units under study is called population. Suppose we have to collect information about different type of medicines. So these different types of medicine become population for the study. तो अगर आपके पास कोई दवाई है और आपको दवाई की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एट दैट टाइम मेडिसिन बिकम अ पॉपुलेशन फॉर द स्टडी, क्योंकि आपको मेडिसिन का स्टडी करना है तो मेडिसिन आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगी. नाउ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स contained in the population is called the size of populations.
Now every population having some size and the total number of units contained in the population is called the size of population. Suppose when a class teacher want to collect information about how many students present and absent in the class, so at that time, so when class teacher visit classroom and he want to collect a data about how many students present and absent in the class, so at that time students are under study, that is called population, and after calculation of present and absent, there are 45 students present in the class. So 45, that is size of the population. The total number of units contained in the population is called the size of population. अगर क्लास टीचर को स्टूडेंट का प्रेजेंट एब्सेंट लेना है तो वो स्टूडेंट्स उसके लिए पॉपुलेशन हो जाएंगे. फिर उसने प्रेजेंट एब्सेंट लिया और उसके बाद किया कि भाई 45 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो जो 45 नंबर्स मिले दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द पॉपुलेशन. तो वो साइज ऑफ पॉपुलेशन है. नाउ फाइनाइट पॉपुलेशन, if the total number of units of the population is finite, say n, we will call it a finite population. If the total number of units of the population is finite means countable, you can easily count it. Limited, that is called finite populations, means number of the students in the classroom we can easily calculate, so that is called finite populations. तो जो भी population है उसके जो unit है उसको आप easily calculate कर सकते हो, that is called finite populations. Suppose we have to collect information about living standard of a factory and there are 2000 workers working in a factory. So 2000 workers, that is size of population, but 2000, that is limited numbers, you can easily calculate. So such type is called finite population. So if the total number of units of the population is finite, मतलब जो population है उसके जो number है वो finite है, मतलब easily calculate हो सकते हैं, limited है, so उसको बोलते हैं finite population. And the sign, that is capital N. For example, if 700 workers working in a factory, then for this population N is equal to 700. We shall call such population as a finite population. अगर आपको कोई वर्कर्स की स्टडी करनी है और 700 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्रीज, so n is equal to 700, that is size of population. और वो population 700 है तो आप easily calculate कर सकते हो, so that is called finite population. Now sample, a set or group of units selected from population on the basis of some definite criteria is called sample. So very popular word sample. Sometimes we also take some sample. जैसे आपको कुछ परचेज करना है तो आप पहले उसका एक सैंपल ले लेते हो. जैसे आपके घर में व्हीट या राइस परचेज करना है, अब 100 kg व्हीट लेना है, गेहूं लेना है 100 kg. So at that time wheat or rice is under study, that is called population. लेकिन आप 100 kg तो चेक करने वाले नहीं हो, लेकिन अब थोड़े से एक मुट्ठी के अंदर जितने आ सके उतने लेकर आप चेक कर सकते हो, तो जो लिया वो उसको बोलते हैं सैंपल. आपको मैंगो परचेज करनी है,
अब एक मैंगो के बॉक्स के अंदर 9 या 10 kg आता है, तो अब 9 या 10 kg तो चेक करने वाले नहीं हो, लेकिन उसके अंदर से एक दो आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो, सो दैट इज कॉल्ड सैंपल। और मैक्सिमम जब आपको क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए तो मैक्सिमम लोग सैंपल का ही यूज करते हैं। जैसे आपको मोबाइल परचेज करना है, so when you visit a mobile shop, so at that time mobile is under study, that is your population, but you cannot check all the mobiles available in the shop। आप पूरे दुकान के सभी मोबाइल तो चेक नहीं करोगे ना, आप 3 या 4 या 5 मोबाइल चेक करोगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल। इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। सैंपल का मैक्सिमम यूज आपकी मम्मी करती है। जब मम्मी सुबह खाना बनाती है, तो जैसे दाल बनाई है तो उसके अंदर सब नमक मिर्च प्रॉपर है कि नहीं, मसाला प्रॉपर है कि नहीं, तो एक चम्मच दाल का ले लेती है। सो एट दैट टाइम उनके सामने जो दाल है वो अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप एक चम्मच दाल लो और उसको पीकर भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई प्रॉपर नमक या मिर्च है या नहीं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। जब कोई पेशेंट बीमार है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो जब वो पेशेंट लेबोरेटरी में गया, सो एट दैट टाइम फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन अ पेशेंट ब्लड इज अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो वो क्या करेगा, पूरा ब्लड तो बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन उसके अंदर से 5 ml या 10 ml बाहर निकालेगा और फिर चेक करेगा। तो उसने जो 5 या 10 ml लिया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सैंपल। अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स selected from population on the basis of some definite criteria is called sample। जैसे आपको मेडिसिन का स्टडी करना है, सो हियर अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर सभी मेडिसिन आप चेक करने बैठोगे तो आपका टाइम और एनर्जी मोर कंज्यूम होगा, तो फिर आप उसके अंदर से कोई रैंडमली मेडिसिन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सभी नहीं, लेकिन उसमें से थोड़ी आपने रैंडमली सिलेक्ट कर ली, दैट इज कॉल्ड सैंपल। ये पूरी जो मेडिसिन है वो पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से आपने 10 या 12 सिलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड सैंपल। और मैक्सिमम लोग सैंपल का ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन सब स्टडी करने बैठोगे तो टाइम एनर्जी बहुत कंज्यूम होगा, लेकिन सैंपल से आपको क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपको नोटबुक लेनी है, तो दुकान के अंदर तो बहुत सारी नोटबुक है, तो आप सभी नोटबुक तो नहीं चेक करोगे, लेकिन 3 या 4 सिलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल। सो अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइनेड क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड सैंपल। नाउ डेटा, ये तो बहुत पॉपुलर है, अभी तो मैक्सिमम लोग उसको मोबाइल डाटा के ही नाम से जानते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन। आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब इंस्पेक्शन करते हो, तो वहां से आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलता है, सो द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन we collected from any inspection, that is called data। जैसे आपने जब 9th की एग्जाम दी थी और आपके जो सब्जेक्ट था उसके अंदर कितने मार्क्स आए, तो आपने स्कूल की विजिट की कि सर मेरे कितने मार्क्स है, तो उन्होंने कहा भाई हिंदी में इतने हैं, मैथ्स के अंदर इतने हैं, साइंस के अंदर इतने हैं। तो जो आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया तो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा। और कई सारे लोग ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो गवर्नमेंट है नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ पेशेंट इन एवरी स्टेट, डेथ रेट ऑफ कोरोना पेशेंट, रिकवरी रेट ऑफ कोरोना पेशेंट। तो गवर्नमेंट हर स्टेट से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड डेटा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है,
तो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो टीचर को अपॉइंट करती है और टीचर हर सिविलियन के घर पे जाता है और वहाँ पर्सनली इंस्पेक्शन करता है और वो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करता है कि भाई हाउ मेनी मेंबर्स इन अ फैमिली, their religion, their source of income, number of children in a family, उनका खुद का मकान है या नहीं या किराए का है, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड अ डेटा. द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा. The units of the population or a sample possesses different types of characteristics. तो जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के रहते हैं, वो सभी सेम नहीं होता. इट इज पॉसिबल दैट द मेजरमेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट. सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. It can be either numerical or non-numerical. So when we collect any data, but some of the characteristics of the measurement varies from unit to unit. तो कई बार जब आप ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हो और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट रहता है यूनिट टू यूनिट, हर जगह वो सेम नहीं रहता, and that is called variable. Vary means different. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है वो डिफरेंट आइडेंटिटी लेता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. जैसे टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इन हिम्मतनगर, टेम्परेचर इन अहमदाबाद, टेम्परेचर इन मुंबई, टेम्परेचर इन दिल्ली. सो टेम्परेचर इज वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो हर सिटी का एक ही तो आप टेम्परेचर नहीं होगा, सबका डिफरेंट रहेगा, तो वो वेरिएबल हो जाएगा. जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट. सो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. हर स्टूडेंट की सेम हाइट नहीं होगी, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, so that is called variable. Weight of a student, marks in maths, percentage of students, it is varies from student to student, it is called variable. So the measurement of characteristics, I repeat this word, the measurement of a characteristics varies from unit to unit. Such characteristics is of a unit is called variable characteristics. और जो आप वेरिएबल कलेक्ट करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सम ऑफ द वेरिएबल्स आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड सम ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म. कई बार आपको जो डेटा मिलता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म्स के अंदर है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स तो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होंगे, परसेंटेज, उसकी हाइट, वेट वो होगी. लेकिन स्टूडेंट की क्लेवरनेस क्या है, क्लेवरनेस, ऑनेस्टी क्या है, हार्ड वर्किंग स्किल क्या है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. स्टूडेंट के मार्क्स आपको नंबर्स में मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट की क्लेवरनेस है यू कैन नॉट गेट अ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म. तो कई बार इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलती है, कई बार नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगी. If the variable characteristics is non-numeric, then it is called qualitative variable. Look this word. If the variable characteristics is non-numeric, it is called qualitative variable. We shall call such qualitative characteristics is an attribute, and the collection of observation on the attribute is called qualitative data. अगर कोई भी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म मतलब वो नंबर्स में नहीं मिलेगी. नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट वो नंबर्स में मिलेगी, लेकिन कंडीशन ऑफ कोरोना पेशेंट, समझ रहे हो, कोरोना पेशेंट वो आपको नंबर में मिलेगा तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म होगा. बट कंडीशन ऑफ कोरोना पेशेंट यू कैन नॉट मेजर्ड इन नंबर्स. आप क्या कहोगे, क्रिटिकल है, कोरोना पेशेंट की हेल्थ अच्छी है, बेटर है, आप यही बोलोगे ना, आप न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं बोलोगे. नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट दैट इज न्यूमेरिकल फॉर्म.
but condition of corona patient, that is non-numerical form. So we shall call such qualitative characteristics is an attribute. जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स वो आपको नंबर्स में मिलेंगे, लेकिन क्लेवरनेस ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. और ऐसे जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर आप उसका डेटा कलेक्ट करते हो तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा. द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. तो अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. इफ the variable characteristics is a numerical, then it is called numerical variable. तो कई बार जब आप वेरिएबल कलेक्ट करते हो उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल. हाइट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, वी कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल. And the collection of observation on the numerical variable is quantitative data. अगर जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, अगर आप उसका डेटा कलेक्शन करते हो तो वो आपके लिए क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा. जैसे गुजरात के अंदर 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 10 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उसका मार्क्स, तो वो तो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर है. उसका हमने वी कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑफ मैथ्स या साइंस का मैथ्स आपने कलेक्ट किया, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा. नंबर ऑफ पुअर पर्सन इन गुजरात, गुजरात के अंदर कितने पुअर स्टूडेंट है, कितने गरीब है, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगा. बट पुअर्टी, दैट इज नॉन न्यूमेरिक. कोई गरीब है, लेकिन कितना गरीब है, ज्यादा है, बहुत कंडीशन क्रिटिकल है, वो तो क्वालिटेटिव हो जाएगा, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा. इन द अबव एग्जांपल द डेटा रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स लाइक जेंडर ऑफ वर्कर्स, देयर एजुकेशन लेवल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. तो कोई भी वर्कर्स है तो नंबर ऑफ वर्कर्स वो नंबर्स में मिलेंगे, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म. बट जेंडर ऑफ वर्कर्स, दैट इज नॉन न्यूमेरिक. एजुकेशन लेवल, तो एजुकेशन लेवल कितना है, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, लेकिन कितना है वो नंबर के अंदर नहीं बोल सकते, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. एंड द डेटा रिलेटेड द न्यूमेरिकल वेरिएबल लाइक मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स, देयर एज इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. कोई वर्कर्स है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, 10,000, 15,000, 20,000, 25. So you will get a information in numbers. So that is called quantitative data. Their age, 40 years, 42 years, 43 years, that is quantitative data. So again I repeat, data, the set of all the observation obtained by such inspection is called data. Now what is variable? The measurement of a characteristics varies from unit to unit. Such characteristics of unit is called variable characteristics. And there are two types of variable, qualitative and quantitative. If the variable characteristics is non-numeric, then it is called qualitative variable. Honesty, cleverness, education level, love, affection, this is qualitative variable. And the collection of observation on the attribute is called qualitative data. तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डाटा हो जाएगा. इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल, देन इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल. स्टूडेंट के मार्क्स, हाइट, वेट, वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगा. एंड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा.
तो टुडे वी डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो इसको आप अच्छे से नोटबुक के अंदर लिख लो, ये अच्छा है। बेसिकली स्टैट एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में बेसिक नॉलेज है, तो प्लीज इसको आप लिख लो, रेडी कर दो। थैंक यू वेरी मच।